Hello students, welcome back. So today's chapter is cell cycle and cell division. So before we start our journey into this chapter, let me request you, for all those who have not yet subscribed to my channel, to kindly subscribe the channel now. Okay? So let's begin today's chapter, cell cycle and cell division. So dear students, you all are how many years old now? 16 plus? Yes, 16, right? So how did your life journey begin? Your life journey began as a small something invisible to the naked eye. But today look at yourself, hatta katta, right? 5 feet plus, strong. So what was the reason? What is the thing that brought this transformation from something invisible to the one that is sitting in front of me or watching this video? Right now you are watching this video, पर क्या आपको मालूम है कि इस वक्त भी आपके बॉडी में कहीं ना कहीं सेल डिवीजन हो रहा है, वो भी बिना कोई नॉइज किए, एंड यू आर अनअवेयर ऑफ इट, राइट? तो क्या है ये सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन? वही है आज देखेंगे इस वीडियो में. सो लेट्स बिगिन. नाउ फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके दो बहुत ही बेसिक कैरेक्टर्स क्या क्या है? फर्स्ट इज ग्रोथ एंड देन इज डिवीजन. सो इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, से मी या यू, वी बिगैन आवर लाइफ एज a unicell or a single cell structure, the zygote. तो zygote में सबसे पहले क्या हुआ? Growth, and then the division started. So growth and division are the two basic fundamental features of all cells, and when we say all cells, all living organisms, right? तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है कि all the cells that we see has arisen from a pre-existing cell. कैसे? By division. And who was the person to propose this? It was Rudolf Virchow, right? He had proposed omnis cellula e cellula, means all cells arise from pre-existing cells. Arise how? By mitosis. तो इस चैप्टर में कुछ टाइप ऑफ सेल्स की बातें हमेशा होती रहेगी. वन इज हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, सोमैटिक एंड रिप्रोडक्टिव. सो व्हाट आर दे? अ क्विक क्लैरिफिकेशन. आई नो आप सबको मालूम है, लेकिन फिर भी हैप्लॉइड सेल हम किसको बोलते हैं? हैप्लॉइड सेल आर द सेल विच हैज ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम. डिप्लॉइड ट्वाइस एन, यानी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. सोमैटिक सेल्स आर द नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ द बॉडी विच अंडरगोज माइटोसिस. ओके. Or in sexually reproducing organisms, the specialized cells which give rise to gametes are referred to as the reproductive cells, and meiosis वहीं पे खाली देखा जाता है. Clear? अब आते हैं cell cycle पे. What is cell cycle? So what is the definition of cell cycle? It is genetically controlled and coordinated series of changes that occur in a newly formed cell, by which the cell undergoes growth, duplicates its genome, and divides to form 2 daughter cells. This is a complete overview of cell. तो वही बात इस साइकिल पे भी छुपा हुआ है. So let us start digging into this cycle to find out ये जो है figure in this book, in this board, या जो आपके बुक या हर जगह मिलता है, how this cycle is a cycle of precision, performance and perfect timing. Okay? तो यहाँ से सबसे पहले अगर हम देखें, we can see here it is written the M phase, and from M phase to M phase, यहाँ से यहाँ, it is referred to as interphase, या उसे resting phase भी बोलते हैं. क्या ये सचमुच रेस्टिंग फेज है? नो, इट इज नॉट रेस्टिंग फेज. द सेल ड्यूरिंग इंटरफेस इज जस्ट नॉट डिवाइडिंग, इसीलिए उसे
रेस्टिंग फेज बोला जाता है, बट इट इज़ वेरी मच मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो क्या होता है, आफ्टर अ डिवीजन अ न्यू सेल इज फॉर्म एंड फ्रॉम हियर इट बिगिंस इट्स लाइफ जर्नी, पूरा यहाँ से यहाँ तक टिल इट डिवाइड्स अगेन। So this phase is the interphase. Interphase is divided into 3 further phases, G1, S and G2, और उसके बाद M phase शुरू होता है। तो ये डायग्राम को देख के जैसे ऑब्वियस है कि मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द साइकिल या मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऑफ द सेल साइकिल गोज इनटू इंटरफेज, और ये बात सच है। इन अ ह्यूमन सेल, जो लैब में हम कल्चर पे ग्रो कर रहे हैं, इट टेक्स 24 आवर्स फॉर दैट ह्यूमन सेल टू ग्रो, टू कंप्लीट 1 सेल साइकिल। और उस 24 आवर्स में 95% ऑफ द टाइम goes into the interphase. When it is growing, it is duplicating its genome and it is getting ready to divide into 2 cells. 5% of the time goes only into this M phase या division phase. So this is the dividing phase, this is the non-dividing phase. E. coli का ये पूरा का पूरा E. coli में ये पूरा का पूरा cell cycle is 20 minutes long, out of which 18 minutes goes into the interphase और 2 minutes into the division. Yeast का है पूरा का पूरा is 90 minutes. Okay. Now let us begin to see कि ये interphase के phases क्या क्या है. And before that, जैसे ये G1 phase है, S phase है, G2 phase है, जब तक एक phase पूरा complete नहीं हो जाता, next phase will not start. So there is no overlap कि G1 भी चल रहा है, S भी पैरेलली चल रहा है, G1 ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, G2 भी घुस गया, ऐसा नहीं होता, one after the other, and the coordination is very much precise. So who takes care of that coordination? Who is the checkpoint? Who is forming the checkpoint? एक प्रोटीन है साइक्लिन, cyclins group of proteins and cyclin dependent protein kinases. This is an enzyme. Okay. तो ये 2 चेक मास्टर है, चेक पॉइंट्स है कि ये फेज हुआ, सारे के सारे इवेंट्स जो होने हैं वो टिक 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 हो गए, then you go to the next phase. So these are the timers और these are the checkers कि next वाले stage में जाएंगे कि नहीं. So let's see G1 phase में क्या होता है. G1 phase is the longest phase of the interphase. मैं इसको पूरा erase कर देती हूँ and then let me start writing. तो interphase जिसे resting phase भी बोलते हैं, it is divided into 3 phases. इसका नाम रेस्टिंग फेज होता है, इसे इट इज़ रेफर टू एज रेस्टिंग फेज. वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट डिवाइडिंग. बट इज इट एक्चुअली रेस्टिंग? नो, ये मेटाबॉलिकली बिल्कुल एक्टिव रहता है. ओके, ऑल थ्रू आउट द इंटरफेस मेटाबॉलिज्म चलते रहता है, अदरवाइज ग्रोथ होगा कैसे? दिस इज द टाइम व्हेन द सेल इज ग्रोइंग एंड प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर डिवीजन. तो सबसे पहले हम देखते हैं G1 फेज का. G1 फेज इज द लॉन्गेस्ट ऑफ फेज ऑफ दिस फेज. सेल तो डेफिनेटली मेटाबॉलिकली एक्टिव. क्या क्या सिंथेसिस होता है इन द G1? RNA प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स ऑफ ऑल टाइप्स, बट स्पेशली द वंस दैट मेक हिस्टोन. ना बच्चों, आपको शायद अभी मालूम नहीं हो सकता है कि व्हाट इज हिस्टोन, बट हिस्टोन क्या है? द क्रोमैटिन्स जो हमारे न्यूक्लियस में है, दे आर पैकेज्ड, दे आर सील्ड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स which are called histone proteins. Okay, they are basic in nature और उनमें अमीनो एसिड लाइसिन एंड अर्जिनिन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है. सो दोज अमीनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड मोर ड्यूरिंग द G1 फेज. वाई सो? बिकॉज इसके बाद सिंथेटिक फेज आता है और सिंथेटिक फेज में DNA रेप्लिकेशन हो रहा है. तो जाहिर सी बात है यहाँ वही सब चीज़ का सिंथेसिस ज़रूर ज़्यादा होगा, विच विल बी रिक्वायर्ड इमीडिएटली, राइट? Nucleotides are synthesized here.
वाई आर द न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज्ड हियर? बिकॉज यहाँ रेप्लिकेशन होने वाला है। तो रेप्लिकेशन होने के लिए तो कच्चा माल न्यूक्लियोटाइड्स तो चाहिए, दैट इज वाई दे आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द G1 फेज। एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स तो हमेशा चाहिए फॉर एवरीथिंग in life, for the life process to continue. So that is synthesized here. And organelles multiply, but which ones? Specially semi-autonomous organelles like mitochondria and plastids. ऐसा क्यों? Because mitochondria are the powerhouses of our cell. तो एनर्जी रिक्वायरमेंट हमेशा होगी, एटीपी रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया को मल्टीप्लाई पहले से ही हमेशा करना होता है। And how do they multiply? Do you remember? They multiply by fission. Plastids, in case of plant cells, they make their food. अगर plastids multiply नहीं करेंगे, they will not be able to make a lot of food, and if they are not able to make a lot of food for themselves, they are not able to make a lot of energy for themselves also. So this is the logic key of all the organelles. Mitochondria, plastids G1 से ही multiply करते हैं। अदर ऑर्गेनेल्स लाइक GA एंड ER, गोल्गी apparatus एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो अगर अभी भी ना भी करे तो भी चल जाएगा, बट G2 में जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन उनको करना ही है, राइट? तो ये हो गया G1। ऑल अंडरस्टूड द लॉजिक कि हमें न्यूक्लियोटाइड्स अभी क्यों चाहिए, हिस्टोन वाले अमीनो एसिड्स G1 में क्यों ज़्यादा सिंथेसिस होते हैं, एंड वाई माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स मल्टीप्लाई एसेंशियली ड्यूरिंग द G1 फेज। Now let us come to the S phase, which is the next phase. यहाँ पे दो, एक न्यूक्लियस पे देखते हैं क्या होता है, फिर साइटोप्लाज्म पे देखते हैं क्या होता है। DNA न्यूक्लियस पे है रेप्लिकेशन, तो फिर न्यूक्लियस पे ही होना है। The DNA replication occurs in nucleus. DNA replication means what? All the chromatin fibers are making photocopies of themselves. अपना ही कॉपी बना रहे हैं या कार्बन कॉपी बना रहे हैं। So if these are the chromatins न्यूक्लियस के अंदर, let us take कि दो ही क्रोमैटिन है, ओके? ये न्यूक्लियस है। तो सिंथेसिस मतलब क्या? मैं एक अलग इंक से ड्रॉ कर रही हूँ so that it is easy for you to understand. This means ये क्रोमैटिन ये डुप्लीकेट हो गए, ओके? तो व्हाट आर द थिंग्स डुप्लीकेटिंग? क्रोमैटिन डुप्लीकेटिंग, यस। डीएनए क्वांटिटी डुप्लीकेटिंग, यस। नाउ अपना ही अगर कार्बन कॉपी बना रहा है या अपना ही अगर फोटोकॉपी बना रहा है, तो इस क्रोमैटिन के यहाँ पे जो जीन है, तो उसके ही फोटोकॉपी पे यहाँ पे भी द जीन विल बी द सेम, तो जीन्स भी डुप्लीकेट हो रहा है। बट व्हाट इज नॉट डुप्लीकेटिंग इज द क्रोमोसोम नंबर। ये डुप्लीकेट नहीं हो रहा है। तो ऐसा कैसा हो सकता है कि क्वांटिटी डुप्लीकेट हो रहा है बट नंबर नहीं? अगर क्वांटिटी अगर 2C है तो वो 4C बन जा रहा है, लेकिन नंबर अगर ट्वाइस n है तो वो ट्वाइस n ही रह रहा है। वाई? बिकॉज द न्यूली सिंथेसाइज्ड क्रोमैटिन फाइबर्स वो सारे के सारे एक ही सेंट्रोमेयर से चिपके हुए हैं। सो फ्रॉम हियर इट इज गोइंग टू गिव राइज टू अ chromosome or a replicated chromosome with 2 chromatids, okay? फिर आगे चल के सेल डिवीजन में when those chromatids separate then they again become individual chromosomes. इसीलिए क्रोमोसोम का नंबर यहाँ नहीं बढ़ रहा है। Is the concept clear? Chromatin fibers duplicate, they are held by the centromere. This gives rise to a replicated chromosome. हमेशा आप देखते हैं ना, This is nothing but the image of a replicated compact chromosome after S phase. ये compaction के बाद होता है, but और ये एक ही सेंट्रोमेयर से लगा हुआ है, that is why it is referred to as one single chromosome. जब ये split हो जाएगा, one chromatid single हो जाएंगे फिर से, then they will be referred to as 2 chromosomes. Is this concept clear? If so, then please let me know in the comment section because बच्चों को ये वाला प्रॉब्लम बहुत होता है, ओके?
Now let us come to cytoplasm. Cytoplasm में centrioles and consequently the centrosomes duplicate. In animal cells में centrioles के पास जो centrosphere है वही तो centrosome है, right? तो ये डुप्लीकेट कर जाते हैं. सेंट्रियल्स डुप्लीकेट करते हैं तो उनके साथ साथ उनके पास वाला वो सेंट्रोस्फेयर भी डुप्लीकेट कर जाता है. तो सेंट्रियल्स प्लस सेंट्रोस्फेयर इज सेंट्रोसोम. सो यू कैन से दे बोथ आर डुप्लीकेटिंग बट दे आर नॉट मूविंग टू द अपोजिट पोल. ये अभी खाली डुप्लीकेट ही कर रहे हैं, न्यूक्लियस के पास ही है, अपोजिट पोल्स में भी गए नहीं है. कीप दिस पॉइंट इन माइंड. Then if everything is complete, the cell goes to G2 phase. G2 phase में भी RNA and protein का synthesis चलते रहता है because protein is always required for anything. वो enzyme के लिए हो, organelles बनाने के लिए हो, या कोई check point हो, कोई check protein हो, कुछ भी हो. और proteins बनाने के लिए भी RNA की ज़रूरत है. Okay, यहाँ पे ribosomes भी बहुत synthesize होता है. Why so? Ribosomes पहले से ही because ribosomes also required for protein synthesis. तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पहले से ही बना के रखते हैं proteins. Here the organelles like GAER multiply या duplicate. अगर यहाँ नहीं भी हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे होना ही होना है. ओके, जैसे ही ये 3 फेज कंप्लीट हो जाते हैं then the M phase comes. और यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है the proteins that are required for cell division, उस टाइप के प्रोटीन्स अब ज़्यादा होते हैं. थिंक लॉजिकली. ओके, तो इसके बाद तो एम फेज है, लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट है. G1 के बाद वो सेल, इसके पास 2 रास्ते हैं. ईदर इट कैन एग्जिट द G1 and enter a G0 या G0 phase which is called the quiescent phase, quiet phase. सेल उसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है बट इट डज नॉट डिवाइड एनी फर्दर. इट एग्जिट्स द सेल साइकिल. दिस इज कॉल्ड क्वाइसेंट फेज. नो डिवीजन but metabolically active. Right? और ज़रूरत पड़ने पे the cell may again come back to G1 phase and start dividing. The reserve cells, human heart cells, nerve cells सारे के सारे G0 phase में होते हैं because they never divide. Okay? They are very very metabolically active. या G0 में जो प्लांट में जो सेल्स डिफरेंशिएशन के लिए जाते हैं दे एंटर द G फेज, G0 फेज और द क्वाइसेंट फेज. दे डिफरेंशिएट एंड दे नेवर डिवाइड, दे बिकम द परमानेंट सेल. पर कभी कभी अगर फिर से बुलावा आए दे अगेन अंडरगो द प्रोसेस ऑफ रीडिफरेंशिएशन एंड एंटर द G1 फेज. ओके, फिर तो ये हो गया एक रास्ता. दूसरा रास्ता कि नहीं भैया मुझे आगे S फेज पे ही जाना है. I am fine with going ahead with the flow of the division. So this is all about interphase. अब इंटरफेज के बाद आता है M phase या the mitotic phase या the actual dividing phase. Now M phase occurs in 2 stages. First in nucleus जिसको कि karyokinesis बोलते हैं, and then the cytoplasm या the protoplasm which is called the cytokinesis. न्यूक्लियस में ही जो चेंजेस होते हैं of the genetic material, that from that point the karyokinesis is divided into 4 stages: prophase, metaphase, anaphase and telophase. And after that cytokinesis begins. So अब M phase को हम बहुत ही डिटेल्स में देखते हैं. ओके, सो बिफोर वी मूव इनटू karyokinesis एक बात है कि ये जो 4 फेजेस है ना, दीज आर नॉट वेरी शार्पली डिवाइडेड. मतलब सेल पे ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल एक ट्रांजिशन जैसे फर्स्ट फेज हो गया फिनिश्ड देन द सेकेंड फेज कम्स. वो ट्रांजिशन थोड़ा सा फ्लूइड होता है. ओके, इट्स अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन बट वी फॉर आवर कन्वीनियंस वी हैव डिवाइडेड देम इनटू 4 स्टेजेस. ओके,
तो फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज व्हाट? प्रोफेज। प्रोफेज को अगर हम दो फेजेस में देख लें, फर्स्ट अर्ली प्रोफेज, फिर लेट प्रोफेज। सो दिस इज द सेल, दिस इज द न्यूक्लियस। प्रोफेज शुरू कैसे हो रहा है? द क्रोमैटिन फाइबर्स हैव बिगन टू कॉम्पैक्ट, गेट कॉम्पैक्ट, इसीलिए इनका एंड दिखता नहीं है इन द अर्ली प्रोफेज। ओके, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ यहाँ लगा हुआ है, और ये जो सेंट्रियोल्स जो डुप्लीकेट हो गए हैं, नाउ दे हैव बिगन टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। ओके, दिस इज व्हाट मार्क्स द अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज से हम लेट प्रोफेज पे आते हैं। दिस इज द सेल। सबसे पहले हम सेल के बाहर का देख लेते हैं। ये सेंट्रियोल्स आर नाउ एट द अपोजिट एंड। ओके, दे हैव रीच्ड द अपोजिट एंड। मैं ये मेम्ब्रेन को बाहर वाइप करी सो दैट इट इज इजी फॉर मी टू ड्रॉ, एंड दे गिव आउट सम फाइबर्स। These are called astral fibers. Okay? So centrioles plus this astral fibers is called aster. ओके, एंड बाय लेट प्रोफेज ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन भी हो चुका होता है। ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। ओके, एंड स्पिंडल फाइबर्स इन एनिमल सेल्स दे अटैच विथ द एस्टर। सो एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर forms the mitotic apparatus। ठीक है, ये हो गया सेल के बाहर का। अब न्यूक्लियस के बाहर का, ये हो गया न्यूक्लियस के बाहर का। अब न्यूक्लियस के अंदर चलते हैं। सो द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज ऑलमोस्ट डिसइंटीग्रेटेड। ओके, बिल्कुल। और ये जो यहाँ पे कॉम्पैक्शन शुरू हुआ था, नाउ द क्रोमोसोम्स हैव बिकम कंप्लीटली कॉम्पैक्ट, और यहाँ पे दो क्रोमैटिड्स बिल्कुल ऑलमोस्ट डिस्टिंक्टली दिख रहा है। क्लियर? एंड द ऑर्गेनेल्स लाइक न्यूक्लियोलस, गोल्गी apparatus, ER, they all have disappeared. So this is the end of the prophase. इसके बाद शुरू होगा मेटाफेज। So let me write the points for you. So बच्चों जो देखा वो पॉइंट्स क्या क्या है अर्ली प्रोफेज के? Initiation of condensation of chromatin, centrioles start to move to the opposite poles, and as they start वो esters को radiate करते करते जाते हैं। Okay, so radiate out microtubule fibrils called astral rays. Centriole plus astral rays is ester। और late prophase में chromosomes are compact। हम देख रहे हैं कि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अंदर आ चुके हैं। वी कैन सी देयर एंड्स, उनका सर और पैर दिख रहा है हमें, राइट? टू क्रोमैटिड्स आर क्लियरली विजिबल, स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड, और स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द एस्टर। नाउ वन थिंग, एस्टर जो है वो तो एनिमल सेल्स में हो रहा है क्योंकि सेंट्रियल्स एनिमल सेल्स में है। प्लांट सेल्स, लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी जो क्लेमाइडोमोनास है या फ्लैजेलेटेड जो भी है, वहाँ पे सेंट्रियोल्स मिलता है। बट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स लाइक जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, वहाँ पे सेंट्रियोल्स होता नहीं है, बट स्पिंडल फाइबर इज फॉर्म्ड। तो स्पिंडल फाइबर अरेंज वैसे ही होता है, दे आर जस्ट नॉट अटैच टू द एस्टर। ओके, वो वैसे ही जब वो शॉर्ट होते रहते हैं, दे पुल द क्रोमैटिड्स। सो स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द एस्टर, माइटोटिक apparatus। अब ये तीनों मिला के, तीनों मीन्स एक्चुअली दो, स्पिंडल फाइबर प्लस एस्टर, बट व्हाट इज एस्टर? एस्ट्रल रे प्लस सेंट्रियोल। तो तीन चीज हो गए ना, इस हिसाब को लिख के रखना। माइटोटिक apparatus इज फॉर्म्ड, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्गी apparatus, ER, दे ऑल डिसअपियर
गधे के सर से सिंह गायब। ऑल डन विद द प्रोफेज। अब हम मेटाफेज पे जाते हैं। ओके, तो मेटाफेज, हाउ इज मेटाफेज मार्क्ड? जैसे ही वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट्स and the chromosome compaction is completed, it marks the beginning of metaphase. Okay, तो पहले हम transition to metaphase देखते हैं। Nuclear envelope has disintegrated means what? सारे के सारे chromosomes अब cytoplasm में फैल गए। Why? Because अब cytoplasm और nucleoplasm में कोई differentiation या demarcation नहीं रहा। Okay? जैसे आप रस्सी से कुछ किसी चीज को बांध के रखते हैं, द मोमेंट यू ओपन द रस्सी तो ये पहले फैल जाते हैं, राइट? वही हो रहा है यहाँ। और यहाँ अब दीज आर द एस्टर्स। डू यू सी द सेंट्रियोल, ये टी जैसा, और ये एस्ट्रल फाइबर्स। सो दिस इज द एस्टर, दिस इज द एस्टर। ये दो अपोजिट पोल्स है। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन इज ऑल्सो कंप्लीट। नाउ स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन जो है, इट इज ऑलवेज कन्वर्जिंग टुवर्ड्स द पोल। पोल की तरफ ये नैरो हो जाता है और बीच में इट बिकम्स द वाइडेस्ट। और ये जो पार्ट वेयर द स्पिंडल फाइबर्स आर बिकमिंग द वाइडेस्ट, दैट प्लेन इज कॉल्ड द मेटाफेज प्लेन। नाउ डू यू सी द स्पिंडल फाइबर्स जो है, दे हैव अटैच्ड देमसेल्व्स टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द क्रोमोसोम। क्या मतलब निकलता है इसका? अगर हम एक क्रोमोसोम को देख लें, ये एक क्रोमैटिड हो गया, ये दूसरा क्रोमैटिड हो गया। दिस इज द सेंट्रोमियर। यहां पे एक काइनेटोकोर है, यहां पे एक काइनेटोकोर है। तो इस वाले पोल में जो स्पिंडल फाइबर है, दैट हैज अटैच्ड टू द काइनेटोकोर ऑफ दिस सिस्टर क्रोमैटिड, और इस वाले पोल से जो, इस वाले पोल के तरफ से जो स्पिंडल फाइबर है, it is attaching to the kinetochore of this sister chromatid, right? So इस तरह से if there is 1 2 3 4 chromosomes, 4 chromosomes means what? 8 chromatids। 8 chromatids हो गए तो 8 spindle fibers होंगे। So in the metaphase of mitosis, the number of spindle fiber is equal to the number of sister chromatids of the chromosome. Clear? Now let us go to the metaphase. Proper metaphase में अब क्या? जैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप टूटता है, this is what we get to see। फिर ये अपने आप को रीअलाइन कर लेते, थोड़े से पोजीशन ठीक कर लेते, बस डिसिप्लिन। ओके, तो all the chromosomes have aligned in one plane which is called the metaphase plate। और सारे के सारे स्पिंडल फाइबर्स यही लगे हुए हैं, and these are the esters। So this plus this is the mitotic apparatus, or this is the best phase to study the structure or the morphology of a compact chromosome। हो गया? So let me write the points for you real quick। So transition to the metaphase is marked by complete disintegration of the nuclear membrane, chromosomes completely compact, and spindle fiber formation is complete। Formation क्या? It has started attaching to the chromosomes also now। Metaphase is marked by chromosomes arranged at the metaphase plate, spindle fibers attached to kinetochores of each sister chromatid of the chromosome. Thus spindle fiber number is equal to the number of sister chromatids, and this is the best stage to study the morphology of chromosome। इसके बाद है एनाफेज। So now students, anaphase। Anaphase में क्या होता है? The centromere has split now and the sister chromatids have separated। अब तक दो sister chromatids were like this attached at the centromere। इधर को एक काइनेटोकोर था, इधर को एक काइनेटोकोर था। The spindle fibers were attached to this side। Now it splits and the sister chromatids become separate, and they are being pulled by the spindle fibers towards the opposite poles। ये पुल कैसे कर रहे हैं? ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो फाइबर्स हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स, दे आर शॉर्टनिंग। ओके, जैसे हम रस्सी को समेटते हैं ना, एंड द बकेट कम्स टुवर्ड्स अस,
सिमिलरली ये धीरे धीरे शॉर्ट होते जाता है एंड द क्रोमोसोम एंड द क्रोमैटिड्स गेट सेपरेटेड. जब ये सेपरेट हो रहे होते हैं, देयर काइनेटोकोर्स आर फेसिंग द पोल and the arms are facing the metaphase plate, and depending on the location of the centromere, do you remember submetacentric, metacentric, telocentric chromosomes we had read and cell in the previous chapter? Depending on that, this is the time when you can see different shapes. You can see V shape, L shape, J shape या I shape. Okay, and this is the only time when you can see a compacted chromosome with a single chromatid. Anaphase is the time. Okay, इससे पहले जहां भी देखते हैं it is a compact chromosome with two chromatids. Compact chromosome, single chromatid, anaphase. Clear है? Let me write it down for you. So centromeres, they split, sister chromatids separate, begin to move towards opposite poles. मतलब the chromatids now begin to move towards the opposite poles, जैसा हमने अभी डायग्राम में देखा. Kinetochore faces the poles and the arms are directed towards the center. इसीलिए हमें V, J, L वो shapes देखने को मिलता है, right? Arms face the metaphase plate. So with this anaphase भी खत्म. अब the last phase of the कैरियोकाइनेसिस विच इज टीलोफेज दैट इज लेफ्ट. तो वो भी देख लेते हैं. तो टीलोफेज में क्या हो रहा है? टीलोफेज में द क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड्स, अब दे आर द डॉटर क्रोमोसोम्स, दे हैव लॉस्ट देयर आइडेंटिटी. वो फिर से क्रोमैटिन बन गए हैं. डू यू सी? अब उन्हें यू कैन नॉट टेल देम अपार्ट. नाउ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स. जैसे ही द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स, न्यूक्लियलस ऑल्सो रीअपियर्स, गोल्गी बॉडीज ER सारे के सारे दे रीअपियर, जो पहले गायब हो गए थे. तो व्हाट इज द ऑर्गेनेली दैट डिड नॉट डिसअपियर? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, ऑलवेज रिमेंबर माइटोकॉन्ड्रिया नेवर डिसअपियर्स. जैसे ही टीलोफेज हो गया, कैरियोकाइनेसिस इज फिनिश्ड. Now chromosomes that moved to the opposite poles have become decondensed. इसीलिए लिखा गया they lose their individual identity. Nuclear membrane reappears and so does nucleus, Golgi apparatus and ER यानी endoplasmic reticulum. Clear? Now let us look into cytokinesis. तो cytokinesis in animal cells take place in one way. Plant cells में अलग तरीका होता है. इन एनिमल सेल आफ्टर टीलोफेज दो न्यूक्लिय हो गए, डॉटर न्यूक्लिय. नाउ ये जो स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हुए थे दे आर गॉन. द वन पर यहाँ पे सम माइक्रोफिलामेंट्स डेवलप विच इंड्यूस द मेम्ब्रेन टू ग्रो इनटू अ फरो, इनवेजिनेट अंदर की ओर, एंड इट स्टार्ट्स ग्रोइंग एज अ फरो. जैसे ही ये फरो इट ग्रोज डीप, very deep, and they meet each other, both the cells separate. Okay, so here the furrow develops in the membrane, it develops inward. When a thing develops inward, उसको invaginate भी बोलते हैं. So it is developing centripetally towards the center, and as the members from both the membrane from both the side is meeting each other, both the cells are cut off and two daughter cells are produced. हो गया. नाउ प्लांट सेल्स में द स्पिंडल फाइबर स्टिल persist and they are now called the phragmoplast. These are phragmoplast. Golgi apparatus secretes some small vesicles at the center. Okay, these are the vesicles by Golgi apparatus. फिर क्या होता है, ये वेसिकल्स के सारे मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाते हैं. ओके, दे फ्यूज विथ अ थिन फिल्म इनसाइड एंड दिस डेवलप्स इनटू अ सेल प्लेट. ये सेल प्लेट जो है दिस इज नथिंग बट द प्रिकर्सर ऑफ द फ्यूचर मिडल लैमेला एंड इट स्टार्ट्स ग्रोइंग सेंट्रीफ्यूगली टुवर्ड्स आउटवर्ड. और जैसे ही ये
keeps on growing centrifugally towards outward. The moment it meets this wall, क्या होता है? They separate. And while it grows centrifugally to meet the दोनों साइड के वॉल, यहां से डिपॉजिट्स ऑफ सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन होते रहता है ऑन द सेल प्लेट. सो दिस नाउ बिकम्स रिच इन द कंटेंट विच इज इक्विवेलेंट टू मिडिल लैमेला. फिर ये मिडिल लैमेला का काम करता है और फिर इस तरफ, क्योंकि इस तरफ तो प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल है, खाली इसी तरफ बनाना है, राइट? तो यहां से द डिपॉजिट्स ऑफ सेल्यूलोज कंटिन्यू एंड प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल इस तरफ फिर से फॉर्म हो जाता है. दिस मेथड इज कॉल्ड द सेल प्लेट इन प्लांट सेल्स. सो बच्चों, इसके साथ माइटोसिस पूरा खत्म होता है, हाउ द डिवीजन वर्क्स. लेकिन कुछ बातें, जैसे कैरियोकाइनेसिस के बाद अगर साइटोकाइनेसिस ना हो तो व्हाट हैपेंस, इट गिव्स राइज टू अ कंडीशन कॉल्ड मल्टीन्यूक्लिएट सेल या सिनोसाइटिक सेल, जैसे हम फंगस में देखते हैं, या सिनकाइटियम इन ह्यूमन मसल सेल्स. क्लियर? तो वहां पे वन सेल विथ टू न्यूक्लियर या मल्टीपल न्यूक्लियर, यू कैन से. क्लियर? एंड वन थिंग, माइटोसिस हमने प्रोफेज से लेके साइटोकाइनेसिस तक पढ़ा. डिड यू फाइंड एनी मेंशन और एनी इंडिकेशन कि क्रोमोसोम नंबर कहीं पे भी चेंज हो रहा है? क्रोमोसोम नंबर इज नॉट चेंजिंग एनीवेयर. वो जिस क्रोमोसोम नंबर से शुरू किया था उसी क्रोमोसोम नंबर पे वो खत्म किया. इसीलिए माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम. नाउ व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस? तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या क्या है? ग्रोथ, ऑब्वियसली सेल डिवीजन नहीं होता तो ग्रोथ किसी भी ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलता, राइट? आप फिर जहाँ से यू हैड बिगन योर लाइफ और मैं जहाँ से बिगिन की थी वो जाइगोट के जाइगोट ही रह जाते अगर माइटोसिस नहीं होता. मेंटेनेंस ऑफ सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वन थिंग, सम सेल्स आर डेस्टिन्ड टू बी कि वो इसी ओवल शेप का हो और इसी साइज का हो. सम सेल्स आर डेस्टिन्ड टू बी दिस काइंड ऑफ अ शेप. ओके, उनका किसी किसी सेल का साइज बहुत छोटा हो, किसी का शायद लंबा बड़ा. तो मेंटेनेंस ऑफ दैट सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई सा भी सेल को ओवरग्रोन होने नहीं दिया जाता. जैसे ही पता चले इट इज बिकमिंग एन ओवरग्रोन सेल फॉर इट्स टाइप, डिवीजन इंड्यूस कर दिया जाता है सो दैट इट रिमेन्स व्हाट इट इज, वो एफिशिएंसी मेंटेन हो. Same with the nucleus to cytoplasmic ratio, yeah, maintenance of nucleus cytoplasmic ratio. Now this is a cell and this is a nucleus. This ratio has to be maintained. अगर increase बहुत ज़्यादा हो गया of the cell size for this nucleus, then the ratio becomes low and the efficiency of this nucleus to control the cytoplasm या all the cellular activity decreases. So high nucleus-cytoplasmic ratio is important for the proper functioning and efficient working of a cell. Regeneration, many animals, many organisms, they regenerate. तो माइटोसिस नहीं होता तो वो भी नहीं हो सकता था. रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, कहीं पे एक चोट लग गई या हमारे द लाइनिंग ऑफ द माउथ, the epidermal layers which are lining something, right? They very often undergo friction or some kind of abrasion, so they need frequent repair. Without mitosis, that is not possible. Asexual reproduction in lower forms. Asexual reproduction में the genetic number is maintained. बिल्कुल जैसा है वैसा ही रहता है. तो अगर माइटोसिस ना हो तो asexual reproduction भी नहीं होगा, right? And then genome number is, yeah, the chromosome number is kept intact because of mitosis. It does not do anything to the chromosome number. Now this brings to the question कि mitosis अब हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है. Mitosis in case of animals is seen in all the somatic diploid cells exception male honeybee, that is a haploid organism.
इट ग्रोज बाय माइटोसिस, तो दैट इज एन एक्सेप्शन जहाँ हैप्लॉइड सेल्स इन द एनिमल किंगडम में माइटोसिस देखने को मिलता है. इन प्लांट सेल्स माइटोसिस इज सीन इन हैप्लॉइड एज वेल एज डिप्लॉइड सेल्स. क्लियर? इन लोअर फॉर्म ऑफ प्लांट्स माइटोसिस हैप्लॉइड सेल्स में भी देखने को मिलता है. ओके, सो बच्चों, विद दिस वी आर डन विथ एवरीथिंग अबाउट माइटोसिस दैट इज गिवन इन योर सिलेबस. अगर पसंद आया हो योर वीडियो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड दोज हु हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. ओके, तो अब हम देखते हैं मियोसिस. तो मियोसिस में जाने से पहले लेट अस हैव अ क्विक लुक एट सम ऑफ द वेरी बेसिक फैक्ट्स अबाउट मियोसिस. क्या मियोसिस हर सेल में होता है हमारे बॉडी में? द आंसर इज अ बिग नो, राइट? So where does it occur? It occurs in special gamete producing cells only. Produces 4 haploid gametes at the end of the division. Chromosome number is halved, thus it is also called reductional division. Interphase occurs prior to the division और interphase एक ही होता है. DNA replication occurs once during this interphase, but the cell divides twice. Yeah, meiosis has 2 phases of division, meiosis 1 and meiosis 2. Okay, now let us begin with the division of meiosis. तो meiosis सेल डिवीजन को हम 2 phases में डिवाइड कर सकते हैं, meiosis 1 and meiosis 2. So meiosis 1 के karyokinesis वाले phase में there is going to be prophase 1, and this prophase 1 is further subdivided into 1, 2, 3, 4, 5 phases. लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, कुछ लोग पैकाइटिन भी बोलते हैं, डिप्लोटिन एंड डायकिनेसिस. देन मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1. एंड इन meiosis 2, prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. Of both the phases and all the stages of both the phases, most interesting and longest one is prophase 1. And this is very interesting. लेकिन अब एक क्या, हमने तो ये सारे के सारे टीलोफेज तक, और टीलोफेज तक तो न्यूक्लियस के स्टेजेस हो गए. साइटोकाइनेसिस का क्या? इन दोनों फेजेस के बीच में देयर इज एन इंटरवेनिंग फेज विच इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस. ओके, मियोसिस 1 इंटरकाइनेसिस, मियोसिस 2 साइटोकाइनेसिस. यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है. मियोसिस 1 के बाद 2 डॉटर सेल्स आर गिवन राइज टू, एंड meiosis 2 के बाद उसका डुप्लीकेट 4 haploid cells और 4 haploid daughter cells या 4 haploid gametes. So let's begin with the most dramatic phase, prophase 1. So let us begin with the journey of prophase. It's going to be very interesting. सबसे पहला phase क्या है of prophase 1? It is called लिप्टोटिन. लिप्टोटिन में what is happening? Condensation of chromosome continues. Okay. तो ये अगर न्यूक्लियस है, these are the chromatins. अंदर ये हो रहा है एंड बाहर दिस इज द सेल, द सेंट्रियोल्स जो डुप्लीकेट हो गए थे, दे आर बिगिनिंग देयर जर्नी टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स. ओके, मैं ये इसीलिए बोल दे रही हूँ बिकॉज आवर एंटायर फोकस इज ऑन द न्यूक्लियस. वी समटाइम्स टेंड टू फॉरगेट व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड द न्यूक्लियस. हो वही रहा है जो प्रोफेज में बाहर, न्यूक्लियस के बाहर हो रहा होता है. ओके, सो कीप दैट इन माइंड. Now comes the next phase which is zygotin. Zygotin में क्या है? Zygotin is about pairing up of the homologous chromosome. Now this is very interesting and very important for all of you to know what is homologous chromosome. I think most of you know. फिर भी एक बार बोल दे रही हूँ. This is our nucleus. ये हमारा nucleus है. And let us imagine an organism with 6 chromosomes. 6 chromosome अगर बोले तो what, how many pairs? 3 pairs.
राइट। तो इस न्यूक्लियस को मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। Let us assume this is the nucleus. Let us assume this is chromosome number 1. This is chromosome number 2. And this is chromosome number 3. Okay? So this is chromosome number 1 dash दे रही हूँ, 2 dash दे रही हूँ, 3 dash दे रही हूँ. Let us draw the other set of chromosome and let's assume ये 1 dash, 2 dash, 3 dash ये पापा के ओर से आया है. So these are the paternal. या तो फिर you can write PP, 2P, 1P, 2P, 3P. Now let us draw जो क्रोमोसोम मम्मा के साइड से आया है. So ये हो गया 2M, ये हो गया 3M और ये हो गया 1M, right? So when a sexually reproducing organism is born out of the zygote, हो क्या रहा है? 2 gametes are coming, 2 gametes आ रहे हैं and gametes are haploid. तो अगर उस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 6 है तो इसमें 3 है, इसमें 3 है. दे आर कमिंग एंड फ्यूजिंग एंड लेट्स एज्यूम इसमें द क्रोमोसोम नंबर्स आर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 dash 2 dash 3 dash. तो व्हेन द जाइगोट इज फॉर्म्ड, एक क्रोमोसोम पापा की तरफ से, एक क्रोमोसोम मम्मा की तरफ से, एक पापा की तरफ से, मम्मा की तरफ से, फिर ये पापा की तरफ से, मम्मा की तरफ से. तो हो गए नहीं ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स. इज दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. तो जाइगोटिन में क्या हो रहा है? यूजुअली ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स पेयर अप होकर नहीं रहते, ये फैले हुए रहते हैं. ड्यूरिंग जाइगोटिन दे ऑल एंड पेयर अप विद देयर रिस्पेक्टिव होमोलोगस क्रोमोसोम्स. नाउ यू ऑल नो कि रेप्लिकेशन डिवीजन शुरू होने से पहले हर क्रोमोसोम रेप्लिकेट कर लेता है. सो व्हाट डज अ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम लुक लाइक? 1 क्रोमोसोम, 2 क्रोमैटिड्स. क्लियर? तो ये एक क्रोमोसोम हो गया, इसका होमोलोगस क्रोमोसोम इज दिस. 1 क्रोमोसोम, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड आई एम फिलिंग दिस अप. ओके, सो दैट यू नो कि ये मम्मा है, ये पापा है. मैं अब इसको और बड़ा करती हूँ या ऐसे हटा देती हूँ. नहीं, इमेजिन दिस होल बोर्ड टू बी द न्यूक्लियस. फिर ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया. दे ऑल आर पेयरिंग अप. पेयरिंग अप का क्या मतलब होता है? कि पास पास आ जाना. अब सिर्फ ये इन दोनों पेन्स को मैं पास पास लाके छोड़ दूं तो क्या ये पास पास रहेंगे? No, either I have to give them something on which they can stand या I have to give them something in between so that ये एक दूसरे को पकड़ के रखे, right? तो ये जब पास पास आ गए हैं पेयरिंग अप के लिए, how are they being held in the place? इनके बीच में कुछ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर आ जाता है, a riboprotein. And they hold the 2 chromosomes in place laterally. Okay? So these chromosomes plus the nucleoprotein is called साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक पूरा क्लियर है? ये पूरा बोर्ड को अब न्यूक्लियस समझ लीजिए. क्रोमोसोम कंडेंस हो रहे थे लिप्टोटिन में, क्रोमोसोम्स काफ़ी हद तक कंडेंस हो चुके हैं. इतना तो हो चुके हैं कि अब वो पास पास आ सकते हैं फॉर फ्रेंडशिप या दोस्ती या पेयरिंग. नाउ ये भी रेप्लिकेटेड है, ये भी रेप्लिकेटेड है. सारे के सारे होमोलोगस सारे के सारे क्रोमोसोम्स ही रेप्लिकेट हो चुके हैं. अब जब सारे के सारे क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट हो चुके हैं तो ईच एंड एवरी क्रोमोसोम इज गोइंग टू हैव 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स. क्लियर? तो दिस इज क्रोमोसोम 1 पापा, दिस इज क्रोमोसोम 1 मम्मा. 2 क्रोमैटिड्स, 2 क्रोमैटिड्स पास पास आ गए. देयर आर पेयरिंग अप एंड दिस प्रोसेस ऑफ पेयरिंग अप इज कॉल्ड सिनेप्सिस.
is called synapsis. और synapsis कैसे होता है? With the help of this nuclear protein. And this gives rise to a complex called synaptonymal complex. So what is synaptonymal complex? Chromosome plus nuclear protein. हो गया? Okay. ये पास one thing, कहीं पे you will see they are being referred to as tetrads. The paired up chromosome को ही tetrad बोल सकते हैं. Why? Because when you are calling them tetrad, you are calling them tetrad from the point of view of how many chromatids are there. तो paired up homologous chromosome में 1, 2, 3, 4 chromatids है. That is why you call it tetrad. या अगर if you are calling them from the point of view from the perspective of number of chromosomes, then you call them bivalent. So after homologous chromosome, this pair consists either you can say a 4 tetrad of you can call them either a tetrad or a bivalent. और single chromosome replicated chromosome को इसको डायड बोलते हैं या यूनिवैलेंट बोलते हैं. डायड व्हाई? बिकॉज 2 chromatids and univalent because 1 single chromosome. Please write all these points down and please be very clear with this concept. zygote हो गया. अब पैकाइटिन पे आते हैं. अब जब ये इतने पास आ गए हैं तो the next step is crossing over. So this is the chromosome from papa, this is mama. अब इन पे क्रॉसओवर हो रहा है. मीन्स द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड. ये तो सिस्टर है एक ही क्रोमोसोम के. 1 सेंट्रोमेयर 1 क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड. एक ही फैमिली की बहनें हैं. राइट? वैसा ही कुछ. तो ये अलग हो गया. दिस इज नॉन सिस्टर. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्रॉस ओवर करते हैं. ओके. एंड वेयर दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर. And at the sides of crossing over, recombination nodules are formed. What are recombination nodules? ये recombination nodules are the nodules which are going to allow जहां पे ये genetic material exchange होने वाला है. Okay? So now if you see the rest of the chromosomes, how will they look? तो सारे के सारे जो paired up chromosomes हैं, they all are doing crossover and the site of crossover recombination nodules form हो चुका है. Who is helping in the process of recombination nodule? The enzyme recombinase. Now recombinase is actually a complex enzyme which further consists of endonuclease, exonucleases, unwindase and R protein. Okay? Clear हो गया सब कुछ? Now let us move on to the next phase which is diplotin. Okay, तो ये क्या synaptonymal complex अभी भी बरकरार है. The synaptonymal complex is still being maintained. So the next phase diplotin में what is happening? In diplotin अब डिप्लोटिन में क्या, दिस न्यूक्लियर प्रोटीन जो है इट गेट्स डिसॉल्व्ड या इट गेट्स डिसोसिएटेड. सो द पेयर्ड अप क्रोमोसोम नाउ स्टार्ट्स फॉलिंग अपार्ट. एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं एक्सेप्ट एट द साइड ऑफ द क्रॉसओवर. ओके, तो एट द साइड ऑफ द क्रॉसओवर इफ यू सी इनका स्ट्रक्चर कुछ एक्स जैसा दिखता है. राइट? This is an X. So this part is called chiasmata. So in diplotin what is happening? The synaptonymal complex dissociates. Synaptonymal complex dissociates, the homologous chromosomes start falling apart या moving apart except at the site of crossover.
जहाँ पे रिकम्बिनेशन नॉड्यूल्स अपीयर हुए थे। एंड बाय दिस टाइम वो जो क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड्स हैं उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लिया है, राइट। नाउ डिप्लॉटिन स्टेज जो है बहुत सारे से oocytes में बहुत सारे से oocytes of vertebrates including female humans may the meiosis gets arrested at this stage. So when a female fetus is inside the womb, actually fetus के ओवरी में meiosis शुरू होता है। It is very interesting. और ये वो डिप्लोटिन तक जाके उसके पैदा होने से पहले ही इट गेट्स अरेस्टेड एट दिस स्टेज, और ये इस स्टेज से बर्थ से लेके टिल शी रीचेस प्यूबर्टी ये ऐसा इसी स्टेज में रहता है। द नेक्स्ट फेज ऑफ द डिवीजन शुरू तब होता है व्हेन शी हिट्स द प्यूबर्टी एंड शी एंटर्स इनटू दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो जब ये डिप्लोटिन के ये क्रोमोसोम्स अरेस्टेड हो जाते हैं, दे अगेन बिकम अ बिट अनटैंगल्ड। ओके, वो थोड़े रिलैक्स फॉर्म में फिर से चले जाते हैं एंड दे बिहेव लाइक एनी अदर क्रोमैटिन, बट वो क्रॉसओवर साइट्स रह जाता है, बट काफ़ी फैला हुआ सा, इतना कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर तब नहीं रहता। नाउ लेट अस कम टू डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायास्माटा। ये जो एक्स साइट था, अब कहते कि नहीं भैया अब यहां से भी हटना पड़ेगा। ओके, सो व्हाट वी गेट टू सी, अब डायकाइनेसिस में क्या? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायास्माटा। तो ये कायास्माटा जो एक्स था अब वो भी हट चुका है। सो अब जिसने जो एक्सचेंज किया था, इफ यू सी, वो एक्सचेंज मटेरियल एक दूसरे के पास रख देते हैं। ओके, सो दिस इज डायकाइनेसिस एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद इन द न्यूक्लियस। और बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस मीन्स बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस इट ऑल्सो मार्क्स द एंड ऑफ प्रोफेज 1। तो बाय दिस टाइम न्यू क्रोमोसोम्स आर इट्स मोस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म, क्योंकि इसके बाद मेटाफेज शुरू होने वाला है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट्स, न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स, सेंट्रियोल्स जो मूव करना शुरू हुए थे एट द बिगिनिंग ऑफ लिप्टोटिन हैव मूव्ड टू द अपोजिट पोल्स बाय नाउ। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हैज स्टार्टेड, nucleolus GAER, they also have disappeared. So this is the most dramatic, interesting and challenging thing to understand in meiosis, which is prophase 1. So बच्चों please let me know in the comment section कि ये समझ में आया कि नहीं, आप इसको अपने सर पे उतार पाए कि नहीं। कहते ना शीशे पे उतार लिया, वैसे आपने ये कॉन्सेप्ट को मैं उतरवा पाई हूँ कि नहीं, ये मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद हम मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज देखते हैं। दैट इज़ ईजी। ये अगर समझ गए हो तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो प्रोफेज 1 के बाद नाउ लेट अस सी कि मेटाफेज 1 पे क्या हो रहा है। सो वी हैड 6 chromosomes, right? But अब due to pairing up, the 6 chromosomes have come together now. 3 pairs are there. So at the metaphase plate, तो आई हैव ड्रॉन ऑल द डायग्राम्स ऑल टुगेदर। अब मैं आराम से समझाती हूँ। तो मेटाफेज में क्या हो रहा है? द पेयर्ड अप क्रोमोसोम्स आर ऑल लाइंग इन द मेटाफिजिक प्लेट। तो यहाँ पे व्हाट डू वी गेट टू सी? 1 2 3 4 मीन्स द टेट्राड या द बाइवैलेंट। तो यही अगर माइटोसिस में होता तो 1 2 3 4 5 6 एक मेटाफेज क्रोमोसोम में होता, सर, राइट? मेटाफेज प्लेट में होता, बट ये मियोसिस पे दे हैव डबल्ड अप। सो हाउ मेनी? 1 pair, 2 pair, 3 pair. Now let us look into the attachment of the spindle fibers. स्पिंडल फाइबर एक एक क्रोमोसोम के काइनेटोकोर में लगा हुआ है, ओनली वन साइड पे, इस वाले काइनेटोकोर में विच इज फेसिंग द पोल। इंडिविजुअल सिस्टर क्रोमैटिड्स के काइनेटोकोर्स पे नहीं लगा हुआ है। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेटाफेज of mitosis and metaphase 1 of meiosis. So there is one chromosome, one fiber, one chromosome, one fiber, one chromosome, one fiber, and that is why number of chromosome is equal to the number of spindle fibers here. Is that clear?
नाउ एनाफेज में क्या, द स्पिंडल फाइबर्स दे स्टार्ट शॉर्टनिंग, एज अ रिजल्ट दिस क्रोमोसोम्स गेट पुल्ड अवे। ओके, तो जब ये पुल्ड अवे हो रहा है, हियर द एंटायर क्रोमोसोम, अब जो पेयरिंग अप के लिए पास पास आए थे, राइट, with each chromosome with two sister chromatids, वो पूरा का पूरा chromosome with two sister chromatids are moving away. There is no split between the sister chromatids. This is the difference between anaphase 1 of meiosis 1 and anaphase of mitosis. तो one chromosome goes there, one chromosome goes there, one chromosome goes there. यहाँ पे 1 2 3 chromosome goes to the other pole. टीलोफेज में they have reached the opposite poles, लेकिन ये पूरा पूरी decondensed like the interphase stage नहीं होते, they decondense to some extent, पूरा पूरी अपना identity they don't lose. Okay, nuclear membrane starts forming, nucleus reappears, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum जो था, जो disappear हो गया था, they again reassemble या reform. हो गया टेलोफेज। इसके बाद है साइटोकाइनेसिस। सो साइटोकाइनेसिस में इट इज गिविंग राइज टू 2 सेल्स। नाउ इंटरेस्टिंग इज, अब जो 2 सेल्स हुए हैं, एक बोथ द सेल्स में देयर इज 1 2 3 1 2 3 क्रोमोसोम्स। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब हमने स्टार्ट किया था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वेर 6, यानी 3 पेयर्स। मियोसिस 1 के बाद जो 2 सेल्स हो रहे हैं, सी इफ यू फॉलो ऑल द डायग्राम्स, अब the number of chromosomes have reduced to half. How and why? ये जो pairing up of homologous chromosomes हो रहा था, because of which the sister chromatids did not separate. और जब तक sister chromatids separate नहीं होता, chromosome number is not going to be the same as the parent cell. How so? Because parent cell में क्या होता है? If I say a parent cell का number is chromosome number is 2, so there are going to be only 2 chromatin within the nucleus, chromatin threads. Compact जब होते हैं, जब क्रोमोसोम बन जाता है, तब तो वो क्रोमैटिड कहलाता है, राइट। बट डिवीजन से पहले क्या होता है, एक एक क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बना लेते हैं। ड्यूरिंग डिवीजन दे अगेन सेपरेट। So if there were 2 chromosomes just before the division, they replicated and they formed 2 chromatids. अब जब क्रोमैटिड सेपरेट होता है, फिर से वो डिकंडेंस होके एक एक सेल में जाके 2 क्रोमैटिड्स बना लेते हैं। दैट इज हाउ द क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन इन माइटोसिस। बट यहाँ पे चालाकी क्या हुआ, यहाँ पे पेयरिंग अप कर लिया। जैसे ये दिस इज क्रोमोसोम 1, दिस इज ऑल्सो क्रोमोसोम 1, ये पापा की तरफ से, मम्मा की तरफ से। तो बिफोर द डिवीजन दिस क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड, सो इट इज द chromosome 1 from father side with 2 sister chromatid, this is the chromosome 1 from mother side with 2 sister chromatid. ये आए, ये पेयरिंग अप कर गए। ड्यूरिंग एनाफेज जब खींचा जा रहा है, the entire chromosome is moving. तो जब entire chromosome is moving, 1 chromosome with 2 chromatids is moving. The chromosome number gets halved. Everything clear? So telophase के बाद cytokinesis होता है and 2 cells are formed with half the number of chromosomes. इसके बाद एक brief intervening phase होता है which is called interkinesis. And in interkinesis, the DNA does not get decondensed completely, neither there is any DNA replication. खाली थोड़े बहुत प्रोटीन्स जो आगे चल के meiosis 2 में यूज होने वाले हैं, only they get synthesized. And meiosis 2 follows immediately, almost immediately. Okay? तो मियोसिस 2 के फेजेस क्या क्या होंगे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। देयर इट इज गोइंग टू बी लाइक माइटोसिस ओनली। फिर भी एक बार देख लेते हैं। नाउ प्रोफेज 2 बिगिंस बिफोर द डीएनए डिकंडेंसेस कंप्लीटली। उतना टाइम ही नहीं दिया जाता। सो बात वही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसइंटीग्रेटिंग और ये फिर से कॉम्पैक्शन शुरू हो जाता है। ओके, let us come to metaphase. Metaphase में क्या हो रहा है इस बार? Now remember there are 2 cells. मैं यहाँ दोनों ही cells ड्रॉ की हूँ। Okay, these are the cells. तो metaphase 1 में
the spindle fibers are getting attached to both the kinetochores of the individual sister chromatid. इस तरफ भी लग रहा है, उस तरफ भी लग रहा है. Same here. Clear? Now this picture, does this not look same as that of metaphase of mitosis? अब बीच में से centromere will get split. तो एनाफेज कैसा दिखेगा अब? राइट? अब क्रोमैटिड सेपरेट हो गए. अब एक एक तरफ एक एक सिंगल क्रोमैटिड इज गोइंग. इसके बाद टीलोफेज होगा. इन टीलोफेज यू नो कि ये साइड पे जाके दे विल डिसअसेंबल, डिकंडेंस हो जाएंगे और फिर साइटोकाइनेसिस के बाद एक एक सेल फॉर्म हो जाएगा. मैं यहीं पे ड्राइंग कर दे रही हूं. सो नाउ डू यू सी, 3 से शुरू किए थे, 3 क्रोमोसोम्स. सो इन मियोसिस 2 द क्रोमोसोम नंबर स्टेज इंटैक्ट. हर वाले में एक एक क्रोमैटिड चला गया. द क्रोमैटिड इज नथिंग बट द फ्यूचर डॉटर क्रोमोसोम ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस. इज मियोसिस कंप्लीटली क्लियर? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर ये पूरा समझ में आया हो. सी आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं पूरा समझा पाऊँ. नाउ इट इज अप टू यू टू डू योर पार्ट एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैम समझ में आया, नहीं आया या क्या कंफ्यूजन है. ओके, सो विद दिस वी आर डन विथ मियोसिस. इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं. ओके, तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या क्या है? ऑफ कोर्स द फर्स्ट थिंग, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर्स. तो देखो बच्चों, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. मियोसिस है इसीलिए डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में द जेनेटिक नंबर इज बीइंग मेंटेन्ड. बट इस जेनेटिक नंबर को मेंटेन करने के लिए इट एक्चुअली हाव्स द नंबर, फिर आगे जाके डिप्लॉयड होता है. तो इट इज़ लाइक एक लंबी छलांग लगाने से पहले यू टेक 2 steps बैक एंड देन यू जंप, राइट? क्योंकि अगर ये नंबर रिड्यूस ना करे तो हर जनरेशन में अगर गैमेट्स ट्वाइस एन हो तो ये इंडिविजुअल इस जनरेशन में ट्वाइस एन है, उसका प्रोजेनी 4n हो जाएगा, 4n के बाद वो 8n हो जाएगा. That is the significance of reduction, why it has to reduce the chromosome number. 2 gametes n आ रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, फिर से parent was also twice n, progeny is also twice n. Okay? Crossing over and recombination leads to genetic variation. Of course you know, यही वो कारण है जिससे कहते हैं ना कि बाकी सब तो मेरे जैसा है, मम्मा पे गया है, बस इसकी नाक इसके पापा जैसा. कहीं पे वो एक्स कायजमाटा पे नाक का इन्फॉर्मेशन चेंज हो गया और मम्मी कहती रहती कि मेरा बेटा बिल्कुल मेरे पे गया, बस नाक अपने मेरे इसके पापा जैसा या नाक इसके दादी जैसा हो गया है, और मम्मी को गुस्सा आता रहता है, राइट? सो दैट इज बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर. स्विच ओवर ऑफ फेजेस इन लोअर फॉर्म्स. लोअर फॉर्म्स जैसे एल्गी में है, ब्रायोफाइट्स में है, द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज वेरी प्रोमिनेंट. गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट. अगर मियोसिस ना हो, सिर्फ अगर सारे के सारे डिविजन्स माइटोसिस ही हो तो ये फेजेस इतने डिस्टिंक्ट नहीं होंगे बिकॉज माइटोसिस डज नॉट लीड टू अ हैप्लॉइडी. सो मियोसिस का सिग्निफिकेंस ये भी, इट स्विचेस, इट हेल्प्स इन दैट switching of different phases or alternation of generation. So with this bachcho, everything about cell cycle and cell division has been covered. Now before I leave, I'm going to request you all to kindly subscribe to the channel, like the video, share it with your friends, and please do comment. And I'm going to see you very soon with another video on another chapter. Till then, please take care of yourself. Study hard, work hard, and we'll meet very soon. Bye till then.